Good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we are reading and learning about chapter first, that is what is democracy and why democracy. इस चैप्टर में हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स के रूप में बहुत सारे जो मेन फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के उसको देख रहे हैं. तो हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं. आइए बढ़ते हैं दूसरे भाग पर. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सेकेंड ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. In the beginning itself, we have read about a discussion in a class going on that what was the need to define democracy and what are the different features of democracy, is the definition adequate, and so on and so forth. So coming to the major features of democracy, we are focusing on the four major features, out of which we have already discussed two with the help of various examples of our neighboring countries, of far off countries. हम चार फीचर्स के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें से दो जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, हम डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. इन अ डेमोक्रेसी ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स एंड शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. क्यों? बिकॉज द पीपल हैव गिवन देम द मैंडेट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ. सेकेंड वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. Free and fair electoral competition is very much necessary, as it is the basic principle of democracy that a democratic election should be held at regular intervals of time and the people must get a clear choice or a free choice to decide to whom they want to make their representative and which political party they want that it should form the government. तो पहले दो फीचर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम जो बाद के दो फीचर्स हैं या बाकी दो फीचर्स हैं उन पर फोकस करेंगे. द थर्ड फीचर इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड द फोर्थ फीचर इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. सो लेट्स वन बाय वन go to the features. The third one is one person one vote and one value. The principle of universal adult franchise was linked with democratic struggles all over the world. ये जो principle है universal adult franchise का, which means that everybody has the right to vote irrespective of his or her caste, community, gender, etc. So, but there were instances of denial of this right to vote, or everybody having the same value of their vote in a country, irrespective of whether he has property or not, whether he or she is rich or poor or not, or whatever the case might be. तो बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं पूर्व में. विश्व के अलग अलग देशों ने कुछ लोगों को या तो वोटिंग राइट ही नहीं दिया था, या तो फिर उस वोट की वैल्यू में कुछ डिफरेंस किया. एक सर्टेन कम्युनिटी की वोट की वैल्यू ज़्यादा और दूसरे लोगों की वोट की वैल्यू कम. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज वुमेन इन सऊदी अरेबिया डिड नॉट हैड द राइट टू वोट अंटिल 2015. कैन यू इमेजिन सच ए सिचुएशन where a country denies right to vote to all its female members? So it is a very drastic situation that continued in Saudi Arabia until the year 2015. But after 2015 they have allowed women to vote. There are certain more restrictions on the movement of women, on the attires of women, etc. till now. Another example is the Russian minority people were denied the right to vote in Estonia. तो एस्टोनिया जो कि एक देश है, वहाँ पे रशियंस जो हैं वो माइनॉरिटी में है, पर वहाँ पे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि ऑलमोस्ट सभी जो रशियंस हैं उनको वोटिंग राइट्स डिनाई कर दिया गया है. अनदर एग्जाम्पल इज द वैल्यू ऑफ वोट इज मोर ऑफ एन इंडिजिनस फिजियन दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. तो फिजी में रहने वाले, फिजी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे इंडियंस कैसे पहुँचे, अब ये भी सवाल है. तो इंडियंस वहाँ पे बॉन्डेड लेबरर्स की तरह, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करते थे, फिर वो वहीं पर बस गए. तो फिजी में जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाद में जाकर वहाँ पर बसे हैं, दैट इज़ इंडियन फिजियंस. सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स वेयर
not everybody had the right to vote, or not everybody had the same value of their vote. So it is very important that all the rule should be same for all, that is all adults should be free to choose their representative, and that vote of an individual should have equal value or one value. So this gives us the third principle of democracy, that is political equality. The third feature is, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो सभी एडल्ट्स को, सभी वयस्क लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और साथ साथ सभी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सभी के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए. Let's move on to the fourth feature of democracy, which is described in your book, that is rule of law and respect for rights. So what, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल पे जाते हैं. पहले एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का. जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन 1980. जिम्बाब्वे भी भारत की तरह ही यूरोपियन देशों की एक कॉलोनी थी. ठीक है, हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में. उनको आज़ादी मिली 1980 में. जिम्बाब्वे इज़ अ कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो आज़ादी के बाद क्या हुआ? एक पोस्टर देख सकते हैं आप जिसमें ज़ीनू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, और एक चित्र है रॉबर्ट मुगाबे का, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं. सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ीनू पीएफ विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. तो 1980 की से 2017 तक, यानी कि आज़ादी मिलने से और आने वाले लगभग 35 से 40 साल तक एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, और इतने लंबे समय में सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर पाती है. तो क्या इससे हम ये समझे कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, या उसने कुछ गड़बड़ की है पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में? तो दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे. एक तो वो पॉपुलर है, और दूसरा उन्होंने घपला भी किया है, घोटाला भी किया है, करप्शन भी किया है, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज़ किए हैं इलेक्शंस जीतने के लिए. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ज़ीनू पीएफ. तो ज़ीनू पीएफ ही हमेशा इलेक्शन जीतती थी, जबकि इलेक्शन रेगुलरली कराए जाते थे, यानी कि एक ऐसा इंप्रेशन डालने की कोशिश की इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं, और एक ही व्यक्ति इलेक्शंस जीतता जा रहा है बार बार, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है. बट प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस. हालांकि प्रेसिडेंट मुगाबे सबसे पॉपुलर नेता थे जिम्बाब्वे में, पर वो बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस का भी प्रयोग करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. बहुत सारी बार उन्होंने संविधान में बदलाव किया, जिससे जो जिम्मेदारी है, जो आंसरेबल है प्रेसिडेंट लोगों के लिए, वो अकाउंटेबिलिटी कम हो गई, और साथ साथ उनकी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो बढ़ती गई. ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड. तो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे, उनको परेशान किया जाता था अलग अलग तरह के पॉलिटिकल केसेस को लेके. उन पे झूठे आरोप लगा के उन पे केसेस बनाए जाते थे, और उनकी जो मीटिंग्स थी उनको भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होने दिया जाता था, यानी कि पॉलिटिकली जो ऑपोजिशन है उसको हर तरीके से दबाया जा रहा था. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जो डेमोन्स्ट्रेशन है, पब्लिक प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है लोगों के, आम लोगों के सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे प्रदर्शन करेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा. और क्या किया रॉबर्ट मुगाबे ने? टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो टेलीविज़न है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो है, उन सभी पर सरकार का कंट्रोल था, ताकि वो वही चीज़ें दिखाएं और वही चीज़ें बताएं लोगों को जो सरकार को पसंद है, या सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, सरकार के लिए अच्छी हैं. और क्या किया उन्होंने? द गवर्नमेंट प्रेशराइज द जजेस हु गेव जजमेंट्स अगेंस्ट इट. और उन्होंने जजेस को प्रेशराइज किया कि जो जजेस उनके अगेंस्ट जजमेंट्स दे रहे थे, ठीक है, और जो सरकार की नीतियों के खिलाफ केसेस की सुनवाई कर रहे थे, उनको प्रेशराइज किया गया कि वो
सरकार के फेवर में ही डिसीजंस ले। बट फाइनली ड्यू टू सो मच प्रेशर ऑफ द पीपल रॉबर्ट मुगाबे वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। तो लोगों के इतना ज़्यादा प्रेशर की वजह से रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में सत्ता छोड़नी पड़ी। सो मूविंग फॉरवर्ड we can conclude that therefore we can say that popular governments can also be undemocratic और autocratic। एक ऐसी सरकार जिसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं वो भी कई बार ऑटोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। वो ऐसे मेजर्स यूज़ कर सकती है जिससे उसका कंट्रोल अलग अलग एजेंसीज पर ज़्यादा हो, अलग अलग जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के उन पे ज़्यादा हो, और जिससे वो हर बार इलेक्शंस जीतती जाए। Apart from the elections, the political activities allowed before and after the elections। सिर्फ तो हमें यही नहीं देखना है किसी देश में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि इलेक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि इलेक्शन से पहले और बाद में क्या प्रोटेस्ट करना अलाउड है, क्या डेमोन्स्ट्रेशन करना अलाउड है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रीडम है, क्या लोगों को रियल चॉइस मिल रही है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती हैं, क्या वो सही ढंग से चल रही हैं या नहीं। अगर नहीं चल रही हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ बाहर से डेमोक्रेटिक दिख रही है, इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द पॉलिटिकल ओपोजिशन शुड बी अलाउड टू क्रिटिसाइज एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन पब्लिक फोरम। तो पब्लिक फोरम में स्वतंत्र तरीके से जो अपोजिशन है या जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो सरकार की आलोचना भी कर सकें। So moving forward, therefore it gives us the fourth and final feature of democracy। तो इस तरीके से हमें अपना चौथा फीचर मिल गया है डेमोक्रेसी का, उसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा, जिसमें हमने जाना किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट संविधान के अनुसार जो नियम बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना चाहिए। उसको अननेसेसरी कंट्रोल या सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए मीडिया पे, रेडियो पे, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज पर, और हमेशा जो सिटीजन्स के राइट्स हैं क्रिटिसाइज़ करना, अपनी आवाज़ उठाना, अपना ओपिनियन देना, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब चारों फीचर्स को ज़रा कंक्लूड कर देते हैं। जितने भी हमने अभी तक इस चैप्टर में फीचर्स पढ़ लिए हैं, लेट अस कंक्लूड एंड गिव अस अ क्लियर आइडिया व्हाट डेमोक्रेसी इन रियल सेंस इज़। सो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल मेजर डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और वही सभी डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। इलेक्शंस एक चॉइस देते हैं, एक फेयर चॉइस देते हैं लोगों को कि जो अभी सत्ता में है उनको भी अगर लोग चाहें तो हरा सके, यानी कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी किसी को भी सत्ता में लाने की। थर्ड, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल इक्वली। ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को बराबर अधिकार देती है। उसके अलावा द गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। ये एक सरकार, जो भी सरकार चुनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के रूल्स के अकॉर्डिंग चले और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, फ्रीडम के, स्पीच के, एक्सप्रेशन के, क्रिटिसिज्म के, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के, डेमोन्स्ट्रेशन के, उसको हर समय अलाउ करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस एंड डू अ लिटिल एक्सरसाइज। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और डेमोक्रेसी के फीचर्स दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स में वो बोलने की कोशिश, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस जो फीचर सामने दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। बस हमें ये बताना है कि एग्जाम्पल में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी घटना हो रही है वो किस डेमोक्रेसी के फीचर से संबंधित है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोबारा से बता दूं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको घटनाओं के, अलग अलग देशों की या अलग अलग एरियाज़ की। उन घटनाओं से आपने ये बताना है कि ये घटना किस डेमोक्रेसी के किस फीचर से संबंधित है। ओके, सो लेट्स सी example features. What is our first example? The first example is King of Bhutan. I'll read it for you. What is it? King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representatives.
जो भूटान के राजा हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, घोषणा की कि अब से उनके डिसीजंस को गाइड करने के लिए वो एडवाइस लेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो ये कौन से फीचर से संबंधित है, क्या लगता है आपको? आई थिंक मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो सभी मेजर डिसीजंस लें, इसका एक प्रयास है। उसके बाद सेकंड, मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन राइट टू वोट इन श्रीलंका। जो बहुत सारे तमिल वर्कर्स माइग्रेट होके गए श्रीलंका में, वहाँ पे उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिला। तो फिर ये तमिल वर्कर्स का जो एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्योंकि वहाँ पे राइट नहीं मिल रहा है सबको, तो ये फिर इस फीचर से संबंधित है, इस फीचर का उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है एक राजा का, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज। एक राजा ने पॉलिटिकल गैदरिंग्स पर, डेमोन्स्ट्रेशन और रैलीज पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, जिसमें वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली रैलीज निकाल सकते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है इस एग्जाम्पल में। फोर्थ एग्जाम्पल is of the Indian Supreme Court. The Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. जो बिहार असेंबली का डिसोल्यूशन हुआ उसको समाप्त कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया, हिंदी में उसको भंग करना कहते हैं डिसोल्यूशन को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो असंवैधानिक था। तो ऐसा एक कार्य हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था जिसमें बिहार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, तो यानी कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो फिर ये किससे संबंधित है? रूल ऑफ लॉ से। आखिरी एग्जाम्पल जो हमारा है वो है पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश पर। पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट रूल करे उस समय जिस समय इलेक्शंस हो रहे हो, यानी कि तब किसी का भी कंट्रोल ना हो इलेक्शन मशीनरी पर या सिस्टम पर। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो हमने पांचों जो एग्जांपल्स हैं वो जान लिए और वो किस फीचर से संबंधित है और क्यों है उस फीचर से संबंधित, ये भी देख लिया। सो टाइम एंड अगेन वी मस्ट चेक आवर प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज let's talk about two cartoon strips. In the first part also we have talked about two cartoon strips. Here also we are going to talk about two cartoon strips. Let us see the first one. What it says: the common people are saying, at last one man one vote, and the person who is behind bars is saying, I liked it better when I was the one man and the one vote. तो फिर एक डिक्टेटर जो जेल में है उसकी सत्ता हट गई है और लोगों को वोट करने का अधिकार मिल गया है। अब जरा पढ़ते हैं इसके बारे में जो आपकी किताब में दिया हुआ है। शोइंग एन इलेक्शन हेल्ड इन इराक आफ्टर सद्दाम हुसैन्स रूल वाज ओवरथ्रोन। तो सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर थे इराक में, उनकी सत्ता को हटाया गया, तब लोग खुश हो रहे हैं कि फाइनली हमें 1 वोट 1 वैल्यू मिल गया, यानी कि सभी को वोट करने का समान अधिकार प्राप्त हो गया है। What is the cartoonist saying here? कार्टूनिस्ट यहाँ पर क्या बताना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि डिक्टेटर्स नेवर अलाउ इक्वालिटी और इक्वल वोटिंग राइट्स टू एनीबडी. इट इज डेमोक्रेसी ओनली विच कैन गिव सच अ राइट टू ऑल इक्वली. सो अब दूसरे कार्टून पर आते हैं. द सेकेंड कार्टून इज डिपिक्टिंग द चाइनीज फोर्सेस और चाइनीज टैंक्स. ठीक है, याहू, गूगल, सिस्को, यानी कि चाइनीज टैंक्स ने इन सभी, या चाइनीज गवर्नमेंट ने या चाइनीज मिलिट्री ने इन सभी चीज़ों को दबा दिया है. आइए पढ़ते हैं क्या दिखाना चाहते हैं. चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. चाइनीज सरकार ने जो फ्री फ्लो है सूचना का, जो इंफॉर्मेशन का, कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है या वर्ल्ड के और देशों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या राइट्स प्राप्त हैं लोगों को, ये उनको, वो अपना क्रिटिसिज्म झेल नहीं सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो उन्होंने लोगों को एक धोखे में रखने के लिए, उन तक इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे, उसके लिए बहुत सारी पॉपुलर साइट्स जैसे कि गूगल और याहू पर बैन लगाया. इट पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक गूगल, याहू एंड एसेट्रा. सो क्वेश्चन इज, फाइंड आउट अबाउट द इवेंट इन रीसेंट चाइनीज हिस्ट्री.
रिसेंट चाइनीज़ हिस्ट्री में क्या ऐसा कोई इवेंट हुआ है? बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही पॉपुलर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हांगकांग, जो कि एक पार्ट है चाइना का, जिस पे चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, हालांकि वो एक ऑटोनोमस रीजन है जो ब्रिटिशर्स ने चाइनीज़ को सौंप दिया था इस शर्त पे कि उनको अपनी पॉलिटिकल आज़ादी मिलेगी और उनको चाइना सप्रेस ना करे। पर चाइना पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा सप्रेशन, बहुत ज़्यादा दमन, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उन लोगों का। तो रोड पे कुछ टैंक जा रहे थे जिसके सामने वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और टैंक को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, यानी कि वो डरते नहीं हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में। So let's move on to the final part of our today's learning, that is assignment. Here we have question number first. Define democracy and explain the main features of a democracy. तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है और उसके प्रमुख फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर which ruled over Zimbabwe from 1980 to 2017. उस पॉलिटिकल पार्टी या हिस्से का नाम बताएं जिसने जिम्बाब्वे पर रूल किया 1980 से 2017 तक, और उस पार्टी का लीडर कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री डिनाइड वोटिंग राइट्स टू वुमेन अंटिल 2015। 2015 तक किस देश ने महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया। I hope all your doubts are cleared. If you still have some, do ask them. Thank you and have a nice day.